मजदूर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं। कारखाने, उद्योग, सड़कें, इमारतें और उत्पादन सब कुछ मजदूरों के श्रम से चलता है। फिर भी जब बात मजदूरों के अधिकारों, वेतन और सम्मान की आती है तो अक्सर मजदूरों की आवाज़ को अनसुना कर दिया जाता है। हड़ताल कोई पहला कदम नहीं होता। ये तब उठाया गया कदम होता है जब संवाद के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब मजदूरों को उचित वेतन नहीं मिलता, जब कार्य की परिस्थितियां असुरक्षित होती है, जब काम के घंटे अधिक और सुविधाएं कम होती है, तब हड़ताल एक मजबूरी बन जाती है, विकल्प नहीं। नमस्कार, वापी गुजरात स्थित आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड में काम करने वाले श्रमिकों ने वेतन वृद्धि और श्रमिक अधिकारों को लेकर प्रदर्शन हड़ताल किया। इस प्रदर्शन हड़ताल में कम वेतन वृद्धि ही प्रमुख मुद्दा रहा। पिछले 11 दिनों से ये हड़ताल शांतिपूर्वक तरीके से जारी है, पर अभी तक कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से किसी ने इस विषय पर इनसे बात नहीं की। ये सारे कामगार भूखे प्यासे तपती धूप में हड़ताल करने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, गुजरात प्रशासन से भी इन्हें कोई मदद नहीं मिली। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। धन्यवाद। बोलो। हम लोग आलोक कंपनी से 15 साल 20 साल से काम कर रहे हैं, जिसमें हमारा 4 साल का एग्रीमेंट नहीं हुआ है और हमारी पगारें 14,000 15,000 यही है और हम अपने पगार के लिए मांग कर रहे हैं। और हम लोग इसीलिए सब लोग एकजुट होकर बोल रहे हैं कि भाई हमारा पगार जो गवर्नमेंट रेट है वो हिसाब से हमको मिलना चाहिए। और हमारी कंपनी कुछ सुन नहीं रही। हम लोग 10 दिन से इधर धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और किसी का पगार 14,000, किसी का 15,000, इतना ही पगार है। इतना पगार में क्या होने वाला है? और हमारी यही मांग है कि हमारा पगार बढ़े। और बहुत सारे मुद्दे हैं, हमारे भाई लोग बताएंगे। खरेखर સુરેશભાઈ રામુભાઈ આહિર, આલોક એમ્પ્લોયર। 2010થી મારું જોઈનિંગ છે। હું પોતાનો જ પરિચય પહેલાં આપીશ। કારણ એક જ છે કે આજે મારો પગાર 15,000 છે અને 15,000માં 3,000 રૂપિયા કપાઈ જાય છે અને મારા હાથમાં આવે છે 12,000 રૂપિયા। એમાં મારું 3,000 ભાડું નીકળી જાય છે। ખરેખર જે અમારું શું કહેવાય કંપનીની અંદર જે કાયમ માટે અમારું શોષણ થઈ રહ્યું છે, એ શોષણ માટે પણ અમે આજે બેઠા છે ધરણા ઉપર। વારંવાર અમે રજૂઆત કરી છે, ઉપર સુધી રજૂઆત પણ થઈ છે, છતાં પણ અમારું કોઈ નિરાકરણ લાગ્યું નથી। કારણ એક જ છે, અમને કંઈ ખબર નથી પડતી કે અમારે કંપનીમાં રહેવું કયું, અમારે રાજીનામું આપવા। આજે ઘરે ઘરે બધાને ઘરે પ્રશ્ન છે કે ખરેખર જ્યારે 14,000ની અંદર શું થવાનું 15,000માં? આજે એ 15,000 રૂપિયા લઈને આજે 15 વર્ષ 20 વર્ષથી માણસો કામ કરે છે અહીંયા આગળ। આ જ કંપનીને જે પોતાનું પસેવો પાડે છે, મહેનત કરે છે અને ખરેખર અમને જ્યારે ઓવરટાઈમ પણ થાય છે, કરવાનો આવે છે તો ખરેખર ડબલ ઓટી મળતી નથી। અને જ્યારે કદાચ કોઈ ઉપર અવાજ ઉઠાવવા જશે એમને કાઢી મૂકવાની વાતો કરે છે। અને એમને જ્યારે એવા અમારા લગભગ 15-17 ભાઈઓને પણ કાઢવામાં આવ્યા છે। અને આજે પણ આ અમારા 11મો દિવસ છે। ખરેખર આ અચોક્કસ મુદ્દતની હડતાલ અમે અહીં જ્યારે બેઠા છે ત્યારે હજુ સુધી પણ કોઈ નિકાલ અમારો આવ્યો નથી। આજે ખરેખર અમારી જોડે 700થી 800 માણસો બેઠા છે, પણ અત્યાર સુધી આજે 10 દિવસ કંઈ નથી કોઈ શાસન, નથી કોઈ વ્યક્તિ કે અમારી જોડે કોઈ વાતો કરવા પણ આવ્યું નથી। ત્યારે ખરેખર અમને એમ થાય છે ખરેખર શું મોતના માટે જ એ લોકો આવે છે અમારી જોડે? ખાલી વોટ જોઈએ છે એટલા માટે જ આવે છે? પછી અમારે કોઈ સાંભળતું નહીં? ખરેખર અમારી રજૂઆત ઉગ્ર છે, અમારા ઘણા એવા બધા પ્રશ્નો છે, પણ હજુ સુધી કોઈ નિરાકરણ આવ્યું નથી। આજે 3-3, 4-4 વર્ષથી પગાર વધારો થયો નથી, સાથે એરિયસ એગ્રીમેન્ટ એવું કંઈ મળતું નથી અને હજી પણ હજુ કંઈ નક્કી નથી કે ભાઈ અમે આપીશું કે અમારી કંપની અમારી જોડે વાતો કરતી નથી અને વાતો કરે છે ખરી, પણ ખરેખર લોલીપોપ આપીને છૂટી પડી જાય છે। જ્યારે આવા પ્રદર્શનની અંદર આવા આવકરોને જ્યારે જોઈએ છે આપણે બધા જ તમે સમૂહમાં જુઓ છો, ખરેખર આજે 11મો દિવસ છે અને 11મા દિવસે પણ હજુ સુધી કોઈ નિકાલ આવ્યો નથી। જે પોતાનું ઘરનું ટિફિન લઈને તડકામાં અને પરેશાન કર્યું, ખરેખર અમે પણ એક વ્યવસ્થા જાળવીને બેઠા છે। નથી કોઈ બબાલ કરતા, નથી કોઈ ઉગ્ર આંદોલન પણ નથી કર્યું, પણ ખાલી અમે એક વ્યવસ્થા પર ભાગરૂપે અહીં બેઠા છીએ અમે। बोलो नहीं है तो इंसाफ कैसे मिलेगा? बोलना पड़ेगा ना, बैठे तो हो ना आप। मेरा नाम दीपेंद्र सिंह है, मैं आलोक इंडस्ट्रीज का एम्प्लॉय हूँ। हम लोग का आज 10 दिन है, 9 दिन हो गया स्ट्राइक। हाँ 10 दिन, लेकिन हम लोग का कंपनी अभी कुछ सुनी नहीं रही है और 12,000 15,000 यही हमारा पगार है। 8 घंटा का जो पगार होना चाहिए सरकारी रेट वो भी नहीं मिल रहा है। कम से कम 26 का रेगुलेशन तो होना है। जो अभी हमको इंसाफ 1800-1500 की बात करती है कंपनी, लेकिन 1800-1500 में हम लोग का क्या होगा?
4 साल से एग्रीमेंट नहीं और किया। 4 साल से एग्रीमेंट नहीं किया। 2022 से 2023, 2024, 2025 अभी तक हम लोग का एग्रीमेंट दिया नहीं, ना भी कोई ऑप्शन उठा रही है। मतलब आपका मैनेजमेंट से कोई बात करने नहीं आया? नहीं, कोई आया मतलब आप लोगों को कोई नहीं? और कहीं पॉलिटिकल सपोर्ट मिला आप लोगों को? पॉलिटिकल सपोर्ट कोई नहीं। बहुत जहाँ मैं जाऊँ वहाँ कैमरा लगाते रहना। आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, बताइए। अब आप भाग क्यों रहे हो? भागो मत, भागोगे तो इंसाफ नहीं मिलेगा। भागो मत, अब आपकी चीज़ें पता हो। आप कितने साल से काम कर रहे हो? 15 साल से। 15 साल से। आपकी सैलरी कितनी है अभी? 14,000। क्या है अब? ऑपरेटर हैं? क्या ऑपरेटर है। ऑपरेटर है। कौन सा मशीन चलाते हैं? SSM वाइंडिंग मशीन। अच्छा, तो आपकी क्या समस्या है? ये है कि 4 साल से पगार नहीं बढ़ रहा है। 4 साल से पगार नहीं बढ़ रहा, घर नहीं चल रहा है? नहीं। हैं? घर चलाने मुश्किल हो रही है। मुश्किल हो रहा है। आपका नाम? अभय राजी। आपकी क्या समस्या है? वही पगार की समस्या। पगार की समस्या, इसीलिए आप लोग स्ट्राइक पे खड़े हैं। कितने दिन से स्ट्राइक पे हैं? 11 दिन। 23 तारीख से आप लोग स्ट्राइक पे हैं। तो मैनेजमेंट से कोई भी आदमी आपसे नहीं बात करने चर्चा में नहीं आया? मतलब आप लोग धूप में ऐसे बैठ के तप रहे हो? और कोई? आप आइए, आप आइए। अरे बोलिए बोलिए बोलिए, तो क्या है? आप लोग इतना हिम्मत करके खड़े हो यहाँ, 400 500 600 700 लोग खड़े हो इधर, तो बोलेगा नहीं तो कैसे चलेगा? गवर्नमेंट भी कैसे सुनेगी आपकी? नहीं सुनेगी, आप नहीं बोलोगे तो बताओ। हाँ, आप यहाँ जॉब करते हैं? कितने साल से? 16 साल 16 साल से जॉब करते हैं। आपका चैरिटेबल प्लान। टेट प्लांट में है? क्या है आप वहाँ? मैं मेंटेनेंस में फिटर का काम। मेंटेनेंस में फिटर है। तो आप लोगों की समस्या है कि आप लोगों का इंक्रीमेंट नहीं हुआ है? हाँ, आप लोगों का इंक्रीमेंट नहीं हुआ या तो कम दे रही है? ये चौथा साल हो गया। लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। 4 साल से एग्रीमेंट नहीं। तो आप मैनेजमेंट को क्या कहना चाहते हैं? हम लोग अभी वही बीच का रास्ता निकालने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे भी कुछ बात नहीं बनी। और हम लोग कल भी गए थे, लेबर ऑफिसर की ऑफिस में मीटिंग था, कल भी बात किया था, आज भी बात किया है, लेकिन जो हमारी मांग है उसके हिसाब से कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो मतलब कितने दिन तक ऐसे बैठे रहेंगे आप लोग? जब तक हम लोग जो हमारी मांग रखी है उसमें मैनेजमेंट बोलता है कि बीच का रास्ता निकाल दे। बीच का रास्ता निकलेगा तो हम लोग उसी दिन से वापस ड्यूटी पे लग जाएंगे। तो जितने दिन आप लोग स्ट्राइक पर हैं उतने दिन की पगार कंपनी देगी? वो तो बोल रहे हैं कि काम नहीं तो वेतन नहीं, ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन उनका रिक्वेस्ट करेंगे। हाँ। क्या? क्योंकि 10 दिन हो गया, 10 दिन पगार लॉस तो होगा आप लोगों का। जैसे बराबर घर भी चलाना है आप लोगों को। आज 10 दिन हुआ है, पता नहीं ये 15 दिन भी हो जाए, 20 दिन भी हो जाए, 1 महीना भी हो सकता है आप लोगों के लिए। हो सकता है ना? देखो, इससे 3 लॉस होता है, 3 लोगों को लॉस होता है। एक तो आपको लॉस होता है, एक कंपनी को लॉस होता है, तीसरा देश को लॉस होता है। तीनों का लॉस होता है। हाँ जी, कंपनी के लॉस कहाँ हो रहा है? कंपनी का प्रोडक्शन नहीं निकलेगा तो लॉस नहीं होगा। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट वाले चला रहे हैं, मशीनें बंद नहीं है, कंपनी चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर से चल रही है। ज्यादा वो लोग का पगार है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर पगार कंपनी वर्कर से ज़्यादा है? कॉन्ट्रैक्ट वाले का ज्यादा सैलरी है। सारा डॉक्यूमेंट है आप लोगों के पास कि ज़्यादा है पगार उन लोगों की? वो लोग का 8 घंटे के हिसाब से सैलरी बनाते हैं, लेकिन वो लोग का सैलरी सीनियर में जब अटेंडेंस देखते हैं तो 45 दिन का 50 दिन का ऐसा सैलरी दिखाते हैं। सरकार 783 रुपया 8 घंटे का सैलरी है। हाँ, सरकार दे रही है। स्किल्ड वर्कर का, एक हेल्पर का हेल्पर का कितना? 12 घंटे का? 8 घंटे का 783 रुपये। लेकिन 783 रुपया किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलता। नहीं मिलता। चाहे वो ऑपरेटर हो, चाहे वो हेल्पर हो, चाहे ऑपरेटर हो। जो ऑपरेटर है, चाहे सीनियर हो, चाहे सुपरवाइजर हो या जॉबर हो, लेकिन उसका वेतन उसके स्किल के हिसाब से नहीं मिलता। हाँ। जो सीनियर है उससे भी ज़्यादा हेल्पर का पेमेंट ज़्यादा है, वो कॉन्ट्रैक्ट वाले का। जो आज आए हैं उनका ज़्यादा है। जो कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं वो लोग का हम लोग से ज़्यादा सैलरी है। तो ये समस्या आपने किसके सामने उठाई है? कंपनी के सामने बोला है, लेकिन कंपनी सही नहीं है, सुनने को तैयार नहीं जैसे आप लेबर कोड की बात भी किए, तो मतलब लेबर कोड में क्या चल रहा है? लेबर कोड बोलता है कि आप लोग अंदर चले जाओ, बाद में बातचीत करेंगे। सही बातचीत करेंगे। 1500-1600 रुपये ले लो, अंदर चले जाओ, काम करो, वहीं पे लेबर कोड बिका हुआ है। बिका हुआ है। सिस्टम बिका तो अगली बार आप लेबर कोड जाए ना, हमको फोन करें। पूरा सिस्टम बिका हुआ है। सुनिए, कौन सा लेबर कोड गए हैं?
मतलब वापी है वलसाड़ बरसात भी गए हैं, वापी भी गए हैं, पार्टी भी जाके आए हैं, वलसाड़ भी जाके आए हैं, पार्टी भी जाके आए हैं। तो वो सुनते नहीं है, वो लोग भी सुनते नहीं है। वो लोग एक ही बात करते हैं कि 1500 रुपये ले लो, अंदर चले जाओ, बाद में बातचीत करेंगे। वो सीधा सब बिकाई हुआ है। एक महिला भी है। आप मैडम, आप कई लोग आपका नाम? मेरा नाम रीटा पटेल है। हाँ 2022 से हमारा 2022 में लास्ट बार बढ़ा था, 2023 से हमारी सैलरी नहीं बढ़ी है। अब आप बताइए 2026 में जो 22 में जो तेल का भाव था या जो भी चीज़ों का भाव था वो आज 2026 में है, बढ़ गया है। तो कंपनी हमारी सैलरी क्यों नहीं बढ़ा रही है? हम अपने बच्चों को स्कूल में जब भेजते हैं तो हम उनको ये नहीं बोल सकते हैं कि आप फीस मत दीजिए, कंपनी हमें सैलरी कम दे रही है। हर चीज़ में हमें दिक्कत भुगतनी पड़ती है। ये इधर सब लोग हैं वो सब अपना घर चलाने के लिए, आप ही बताइए अब 15,286 मेरा सैलरी है, उसमें से फुल महीना भरेंगे 13,200 आएगा, 2,000 रुपये ट्रांसपोर्ट का निकल जाएगा, हम 11,000 में घर कैसे चलाएंगे? सही है ना? यही सबका दिक्कत है। हम बहुत परेशान हो चुके हैं, इसकी वजह से ये कदम हमें उठाना पड़ा। बाकी कंपनी हमसे बात करके ये सॉल्यूशन ला लेती तो आज 4 साल से हम लोग जो लड़ रहे थे, शांति से बात चला रहे थे, वो क्यों नहीं होती? लेकिन हमारी बात सुनी गई ही नहीं। आप कितने साल से काम कर रही हैं? मैं 2011 से 2011 से काम कर रही हैं। 2011 में 5,500 पगार था। जैसे आप जैसे बहुत सारी बहुत महिलाएं सारे होंगी, हैं, बहुत सारे लोग महिलाएं भी होंगी जो सबका इस दिक्कत में है सब। ये दिक्कत तो है वैसे, अगर 4 साल इंक्रीमेंट नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। स्वाभाविक, मैं भी रहूँगा तो मुझे भी होगा। हर चीज का भाव बढ़ रहा है तो कंपनी हमारा सैलरी क्यों नहीं बढ़ा रही है? जो सरकार महंगाई हफ्ता भी बढ़ाई है वो भी हमारे नहीं बढ़ रहा। नहीं दिया कंपनी। तो आप गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ट्रक वाले का ज्यादा कैसे पकड़ देता है? गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करती हैं? हम ये चाहते हैं, अभी नया जो लेबर कोड लागू हुआ है तो हमारे लिए हर एक नियम लागू हो रहा है। तो लेबर कोड केंद्र से ओके हो गया है, अब अप्रैल से गुजरात में लागू हो जाएगा हर जगह पे। तो लेबर कोड हमारे लिए क्यों नहीं? उसके वजह से सैलरी लेबर कोड के हिसाब से तो ज्यादा है, तो वो क्यों हमें कंपनी नहीं दे रही है? मतलब मिनिमम वेजेस ज्यादा है अभी। हाँ। बट आपको मिनिमम वेजेस मिल नहीं रहा है। बढ़ गया है ना, आप देखिए ना अभी बढ़ गया है। पता नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा बढ़ गया है। लेबर कोड के हिसाब से लेबर कोड लागू हुआ है 4, जो हमारा जो लेबर कोड पुराने थे वो रद्द हो गया, नया लागू हुआ, उसके हिसाब से हमारा मिनिमम वेजेस बढ़ गया है। हर एक आदमी का, अर्धकुशल कारीगर सबका अलग अलग हो गया है। तो क्यों हमें क्यों नहीं मिला? इसमें से कोई भी हेल्पर नहीं है, सब असिस्टेंट ऑपरेटर, सीनियर ऑपरेटर, जॉबर है। नहीं ठीक है, आप 10, 15 साल से काम कर रहे हो तो आपका बनता है। आप बताइए 20 साल भी 20 साल से काम कर रहे हो तो आप सबका बनता भी है और मिनिमम वेजेस से ज्यादा बनता है। ट्रांसपोर्ट का सुविधा है, हम भी चाहते हैं ना, स्टाफ के लिए बस हम भी चाहते हैं कि हमें भी ट्रांसपोर्ट का सुविधा मिले। हम बाइक लेके आते हैं, हमारे लिए भी रिस्की है ना, हम हर चीज़ के लिए प्रॉब्लम है सर, लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। इसकी वजह से हमें ये हड़ताल का कदम उठाना पड़ा। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, 15 साल से कंपनी का साथ हमने दिया, हम भी चाहते हैं कि कंपनी हमारा साथ दे, लेकिन कंपनी हमारा साथ नहीं दे रही है। इसकी वजह से हम ये कदम उठाना पड़ा। आगे भी ऐसा रहेगा, कंपनी से बातचीत कर रहे हैं, देखते हैं क्या सॉल्यूशन निकलता है। लेकिन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम लोग यही हड़ताल को यथावत रखेंगे। नहीं, मुझे आप लोग मुझे एक चीज़ बताइए, पिछली बार भी आप लोगों ने हड़ताल किया था 2-3 महीने पहले। नहीं, रैली निकाली। अच्छा, सिर्फ रैली निकाले थे? नहीं ठीक है, उस वक्त इधर के प्रशासन है, जैसे कि वापी नगर पालिका है, पार्टी मामलतदार कचेरी है, बलसाड़ कलेक्टर कचेरी, हर एक जगह पे हमने आवेदन दिया है। हमने ये हड़ताल करने से पहले भी पूर्व मंजूरी ले चुके हैं, हम लोग ये हर चीज़ कर चुके हैं। आप इससे ये हमारे जो लीडर है वो लोगों ने सब कुछ परमिशन लेके सब कुछ करके इधर बैठे हैं। तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला? नहीं, बातचीत चल रही है, लेकिन बातचीत चल रही है। 1500 से 1800 के बीच में ही बात कर रही है, जो हमें मंजूर नहीं। चलिए, धन्यवाद। आप लोग हमसे क्या उम्मीद करते हैं? हम आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये चीज़ें, जैसे कि हर एक जगह पे मीडिया एक ऐसा माध्यम है, सोशल मीडिया है, मीडिया ऐसा माध्यम है कि हर जगह पे ये बातें फैले। हम चाहते हैं कि हम जैसे परेशान है वैसे बहुत सारे लोग ऐसे हो गए, तो हम सबका साथ चाहते हैं कि हमारी बातें ऊपर तक जाए और इसका कुछ सॉल्यूशन निकले। कितने कंपनी में इतना शोषण चल रहा है, लेकिन हम लोगों ने आवाज नहीं, मुझे आप जैसे किसी ने बोला कि लेबर को कोर्ट के अंदर कोर्ट बिका हुआ है, किसी ने मुझे ये चीज़ बोला। नहीं, साथ नहीं दे रहा है, साथ नहीं दे रहा है। तो अगली बार आप लोग लेबर कोर्ट जाओ तो हमको फोन करो। हमारी सरकार क्या कर रही है? लेबर कोर्ट लेबरों के लिए बना है। लेबर कोर्ट लेबरों के लिए बना है, आप हमको फोन करो। हमारा साथ नहीं दे रहा है लेबर। अभी मैंने आपके साथ हमारा साथ दिया है ना, प्रशासन भी हम लोग के खिलाफ क्या है ना, प्रशासन हमें साथ क्यों नहीं दे रहा? नहीं, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, लेबर कोर्ट लेबर का साथ देता है 90% केस में। तो यहाँ नहीं दे रहा। हमारा क्यों नहीं दे रही है? हमारा क्यों नहीं दे रहा? वोट आज 3 साल का जो गया वो भूल जाओ और 15 साल के अंदर जाओ। 3 साल का भूल जाओ, जो अभी मिल रहा है वो ले लो। मेरा एक मैसेज कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आते हैं उनका सैलरी मेरा एक मैसेज है धवल पटेल और कन्हूभाई देसाई को कि हमारा सेटलमेंट जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। ये तो हम लोग 800 वर्कर है ना,
उसका दुगना तिगना और चौगना भी होंगे हम लोग। तो कन्नू भाई पटेल, कन्नू भाई देसाई और नाना मंत्री है, धवल नाना पटेल आप लोगों से बात नहीं किया? नहीं किया, उनका वो मैं- अभी नहीं रहा है इधर, उनका कोई मैनेजमेंट में रहा नहीं, कोई जूनियर्स कोई वगैरह कुछ भी नहीं। उनके जूनियर्स भी होंगे, चलो वो नहीं आ रहे हैं, तो juniors फिर वगैरह हम लोगों को अनंत पटेल का सहारा मिला, अनंत पटेल का सहारा मिला। लेकिन उसको भी ये लोग नहीं करने देते हैं। वो हमारे अनंत पटेल का सरकार सहारा में- लिया, उसको भी दबा दिया। हाँ, उसको भी दबा रहे ये लोग। अच्छा, हाँ, भाजपा वाले, हाँ पैसे के दम पे दबा हाँ, रहे दबा रहे हैं। भाजपा वाले दबा रहे हैं। हाँ, तो हम लोग कहाँ क्या करें? तो भाजपा वालों का क्या इंटरेस्ट है इसमें? वो उनका आप तो आप सब तो वोटर हो, आप सब तो वोटर हो। वोटर ही है ना, हम लोगों ने वोट देकर उसको नाना मंत्री बनाया ना, नाना मंत्री फिर बनाया। धारा मंत्री वो धारा सब अपना वो हमारा भरत भाई, फिर धवल भाई, उन लोगों को हमने बनाया ना, तो वो क्यों नहीं आ रहे हैं? उन लोगों को मैसेज है हमारा। हम बहुत परेशान हो चुके हैं, इसकी वजह से ये करना।